ایک دن ضرور آپ اپنی زبان سے اقرار کریں گی کہ حریم نے آپ کے سارے نظریے غلط ثابت کر دیے۔ تو میں ایک تحفہ بھیج رہا ہوں، تو ذرا دیکھو، اور اگر پسند آئے تو اپنے اس یقین اور اعتبار کے علم بردار کو بھی دکھانا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میری بہو اتنی ہی پاکیزہ اور پارسا ثابت ہو۔ یہ پاسبل ہے کہ آج کی ملاقات کے بعد میں حریم کو واپس کرنے جاؤں؟ نہ تم فقیر ہو نہ ہی تاجر، تم ایک لٹیرے ہو، اور لوٹا ہوا مال کبھی کسی کو راس نہیں آتا۔ خیر تو ہے، قارون کی قبر تو نہیں کھود ڈالی، ہر وقت بٹوا بھرا رہتا ہے۔ پھر دیکھنا، ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھوں گی اسے۔ لیکن چیٹنگ، مکاری، دھوکے بازی، یہ سب میرے کردار کا حصہ نہیں۔ کھلاڑی کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ میدان میں اترنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ رایات مجھے بتا رہا تھا کہ فائز دفتر آنا شروع ہو گیا مجبوراً۔ اگر کوئی چیز متاثر ہوگی تو وہ ہے اس کا اور حریم کا رشتہ۔ السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل خمار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حریم کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ حریم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ بہت غمگین ہوتی ہے۔ اس کی ماں کافی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتی ہیں، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ حریم شدید صدمے میں ہوتی ہے اور فائز حریم کو حوصلہ دیتا ہے۔ حریم صدمے کی حالت میں فائز سے کہتی ہے کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھ سے بدگمان تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فائز کہتا ہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، کیا کبھی کوئی اپنی دھڑکن کے بغیر بھی رہ سکتا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ناصر فائز کی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے حریم کی ویڈیو دکھا دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر فائز کی ماں اس قدر خوش ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ کوئی قیمتی جواہرات یا ہیرے لگ گئے ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز کی ماں حریم کے گھر جاتی ہے تعزیت کرنے کے لیے۔ وہاں اسے اس کی پرانی پڑوسن مل جاتی ہے جو اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ناصر کی ماں ہوں۔ بچپن میں ناصر اور فائز کس طرح گلی میں سائیکل چلایا کرتے تھے، لیکن فائز کی ماں ہے جو پچھلی باتوں کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ناصر کی ماں سے کہتی ہے پلیز آپ خاموش ہو جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ فائز کی ماں میں پیسے کا اس قدر غرور اور تکبر ہے کہ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہمنا بھی حریم کو خوب باتیں سناتی ہے۔ حریم ہمنا سے کہتی ہے کہ میں اسی مقام پر بہت خوش ہوں جو فائز نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔ میرے پاس فائز کی ڈھیر ساری محبت ہے، اسی محبت کی طاقت پر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناصر اور فائز کی ماں مل کر حریم کے خلاف کون سا پروپیگنڈا تیار کرتے ہیں۔ کیا وہ حریم کو فائز کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل خمار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حریم کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ حریم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ بہت غمگین ہوتی ہے۔ اس کی ماں کافی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتی ہیں، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ حریم شدید صدمے میں ہوتی ہے اور فائز حریم کو حوصلہ دیتا ہے۔ حریم صدمے کی حالت میں فائز سے کہتی ہے کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھ سے بدگمان تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فائز کہتا ہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، کیا کبھی کوئی اپنی دھڑکن کے بغیر بھی رہ سکتا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ناصر فائز کی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے حریم کی ویڈیو دکھا دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر فائز کی ماں اس قدر خوش ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ کوئی قیمتی جواہرات یا ہیرے لگ گئے ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز کی ماں حریم کے گھر جاتی ہے تعزیت کرنے کے لیے۔ وہاں اسے اس کی پرانی پڑوسن مل جاتی ہے جو اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ناصر کی ماں ہوں۔ بچپن میں ناصر اور فائز کس طرح گلی میں سائیکل چلایا کرتے تھے، لیکن فائز کی ماں ہے جو پچھلی باتوں کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ناصر کی ماں سے کہتی ہے پلیز آپ خاموش ہو جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ فائز کی ماں میں پیسے کا اس قدر غرور اور تکبر ہے کہ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہمنا بھی حریم کو خوب باتیں سناتی ہے۔ حریم ہمنا سے کہتی ہے کہ میں اسی مقام پر بہت خوش ہوں جو فائز نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔ میرے پاس فائز کی ڈھیر ساری محبت ہے، اسی محبت کی طاقت پر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناصر اور فائز کی ماں مل کر حریم کے خلاف کون سا پروپیگنڈا تیار کرتے ہیں۔
کیا وہ حریم کو فائز کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل خمار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حریم کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ حریم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ بہت غمگین ہوتی ہے۔ اس کی ماں کافی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتی ہیں۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ حریم شدید صدمے میں ہوتی ہے اور فائز حریم کو حوصلہ دیتا ہے۔ حریم صدمے کی حالت میں فائز سے کہتی ہے کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھ سے بدگمان تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فائز کہتا ہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا کبھی کوئی اپنی دھڑکن کے بغیر بھی رہ سکتا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ناصر فائز کی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے حریم کی ویڈیو دکھا دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر فائز کی ماں اس قدر خوش ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ کوئی قیمتی جواہرات یا ہیرے لگ گئے ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز کی ماں حریم کے گھر جاتی ہے تعزیت کرنے کے لیے۔ وہاں اسے اس کی پرانی پڑوسن مل جاتی ہے جو اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ناصر کی ماں ہوں۔ بچپن میں ناصر اور فائز کس طرح گلی میں سائیکل چلایا کرتے تھے، لیکن فائز کی ماں ہے جو پچھلی باتوں کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ناصر کی ماں سے کہتی ہے پلیز آپ خاموش ہو جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ فائز کی ماں میں پیسے کا اس قدر غرور اور تکبر ہے کہ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہمنا بھی حریم کو خوب باتیں سناتی ہے۔ حریم ہمنا سے کہتی ہے کہ میں اسی مقام پر بہت خوش ہوں جو فائز نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔ میرے پاس فائز کی ڈھیر ساری محبت ہے، اسی محبت کی طاقت پر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناصر اور فائز کی ماں مل کر حریم کے خلاف کون سا پروپیگنڈا تیار کرتے ہیں۔ کیا وہ حریم کو فائز کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل خمار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حریم کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ حریم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ بہت غمگین ہوتی ہے۔ اس کی ماں کافی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتی ہیں۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ حریم شدید صدمے میں ہوتی ہے اور فائز حریم کو حوصلہ دیتا ہے۔ حریم صدمے کی حالت میں فائز سے کہتی ہے کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھ سے بدگمان تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فائز کہتا ہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا کبھی کوئی اپنی دھڑکن کے بغیر بھی رہ سکتا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ناصر فائز کی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے حریم کی ویڈیو دکھا دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر فائز کی ماں اس قدر خوش ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ کوئی قیمتی جواہرات یا ہیرے لگ گئے ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز کی ماں حریم کے گھر جاتی ہے تعزیت کرنے کے لیے۔ وہاں اسے اس کی پرانی پڑوسن مل جاتی ہے جو اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ناصر کی ماں ہوں۔ بچپن میں ناصر اور فائز کس طرح گلی میں سائیکل چلایا کرتے تھے، لیکن فائز کی ماں ہے جو پچھلی باتوں کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ناصر کی ماں سے کہتی ہے پلیز آپ خاموش ہو جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ فائز کی ماں میں پیسے کا اس قدر غرور اور تکبر ہے کہ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہمنا بھی حریم کو خوب باتیں سناتی ہے۔ حریم ہمنا سے کہتی ہے کہ میں اسی مقام پر بہت خوش ہوں جو فائز نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔ میرے پاس فائز کی ڈھیر ساری محبت ہے، اسی محبت کی طاقت پر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناصر اور فائز کی ماں مل کر حریم کے خلاف کون سا پروپیگنڈا تیار کرتے ہیں۔ کیا وہ حریم کو فائز کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل خمار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حریم کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ حریم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ بہت غمگین ہوتی ہے۔ اس کی ماں کافی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتی ہیں۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ حریم شدید صدمے میں ہوتی ہے اور فائز حریم کو حوصلہ دیتا ہے۔ حریم صدمے کی حالت میں فائز سے کہتی ہے کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھ سے بدگمان تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فائز کہتا ہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا کبھی کوئی اپنی دھڑکن کے بغیر بھی رہ سکتا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ناصر فائز کی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے حریم کی ویڈیو دکھا دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر فائز کی ماں اس قدر خوش ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ کوئی قیمتی جواہرات یا ہیرے لگ گئے ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز کی ماں حریم کے گھر جاتی ہے تعزیت کرنے کے لیے۔ وہاں اسے اس کی پرانی پڑوسن مل جاتی ہے جو اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ناصر کی ماں ہوں۔ بچپن میں ناصر اور فائز کس طرح گلی میں سائیکل چلایا کرتے تھے، لیکن فائز کی ماں ہے جو پچھلی باتوں کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتی۔
वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है। उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती है। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है। हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है? यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन में नासिर और फाइज किस तरह गली में साइकिल चलाया करते थे, लेकिन फाइज की माँ है जो पिछली बातों को याद ही नहीं करना चाहती। वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है। उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती है। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है। हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है? यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन में नासिर और फाइज किस तरह गली में साइकिल चलाया करते थे, लेकिन फाइज की माँ है जो पिछली बातों को याद ही नहीं करना चाहती। वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है। उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती है। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है।
حریم صدمے کی حالت میں فائز سے کہتی ہے کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھ سے بدگمان تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فائز کہتا ہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، کیا کبھی کوئی اپنی دھڑکن کے بغیر بھی رہ سکتا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ناصر فائز کی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے حریم کی ویڈیو دکھا دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر فائز کی ماں اس قدر خوش ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ کوئی قیمتی جواہرات یا ہیرے لگ گئے ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز کی ماں حریم کے گھر جاتی ہے تعزیت کرنے کے لیے۔ وہاں اسے اس کی پرانی پڑوسن مل جاتی ہے جو اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ناصر کی ماں ہوں۔ بچپن میں ناصر اور فائز کس طرح گلی میں سائیکل چلایا کرتے تھے، لیکن فائز کی ماں ہے جو پچھلی باتوں کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ناصر کی ماں سے کہتی ہے پلیز آپ خاموش ہو جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ فائز کی ماں میں پیسے کا اس قدر غرور اور تکبر ہے کہ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہمنا بھی حریم کو خوب باتیں سناتی ہے۔ حریم ہمنا سے کہتی ہے کہ میں اسی مقام پر بہت خوش ہوں جو فائز نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔ میرے پاس فائز کی ڈھیر ساری محبت ہے، اسی محبت کی طاقت پر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناصر اور فائز کی ماں مل کر حریم کے خلاف کون سا پروپیگنڈا تیار کرتے ہیں۔ کیا وہ حریم کو فائز کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل خمار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حریم کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ حریم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ بہت غمگین ہوتی ہے۔ اس کی ماں کافی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتی ہیں، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ حریم شدید صدمے میں ہوتی ہے اور فائز حریم کو حوصلہ دیتا ہے۔ حریم صدمے کی حالت میں فائز سے کہتی ہے کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھ سے بدگمان تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فائز کہتا ہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، کیا کبھی کوئی اپنی دھڑکن کے بغیر بھی رہ سکتا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ناصر فائز کی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے حریم کی ویڈیو دکھا دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر فائز کی ماں اس قدر خوش ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ کوئی قیمتی جواہرات یا ہیرے لگ گئے ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز کی ماں حریم کے گھر جاتی ہے تعزیت کرنے کے لیے۔ وہاں اسے اس کی پرانی پڑوسن مل جاتی ہے جو اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ناصر کی ماں ہوں۔ بچپن میں ناصر اور فائز کس طرح گلی میں سائیکل چلایا کرتے تھے، لیکن فائز کی ماں ہے جو پچھلی باتوں کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ناصر کی ماں سے کہتی ہے پلیز آپ خاموش ہو جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ فائز کی ماں میں پیسے کا اس قدر غرور اور تکبر ہے کہ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہمنا بھی حریم کو خوب باتیں سناتی ہے۔ حریم ہمنا سے کہتی ہے کہ میں اسی مقام پر بہت خوش ہوں جو فائز نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔ میرے پاس فائز کی ڈھیر ساری محبت ہے، اسی محبت کی طاقت پر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناصر اور فائز کی ماں مل کر حریم کے خلاف کون سا پروپیگنڈا تیار کرتے ہیں۔ کیا وہ حریم کو فائز کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل خمار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حریم کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ حریم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ بہت غمگین ہوتی ہے۔ اس کی ماں کافی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتی ہیں، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ حریم شدید صدمے میں ہوتی ہے اور فائز حریم کو حوصلہ دیتا ہے۔ حریم صدمے کی حالت میں فائز سے کہتی ہے کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھ سے بدگمان تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فائز کہتا ہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، کیا کبھی کوئی اپنی دھڑکن کے بغیر بھی رہ سکتا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ناصر فائز کی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے حریم کی ویڈیو دکھا دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر فائز کی ماں اس قدر خوش ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ کوئی قیمتی جواہرات یا ہیرے لگ گئے ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ فائز کی ماں حریم کے گھر جاتی ہے تعزیت کرنے کے لیے۔ وہاں اسے اس کی پرانی پڑوسن مل جاتی ہے جو اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ناصر کی ماں ہوں۔ بچپن میں ناصر اور فائز کس طرح گلی میں سائیکل چلایا کرتے تھے، لیکن فائز کی ماں ہے جو پچھلی باتوں کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ناصر کی ماں سے کہتی ہے پلیز آپ خاموش ہو جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ فائز کی ماں میں پیسے کا اس قدر غرور اور تکبر ہے کہ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہمنا بھی حریم کو خوب باتیں سناتی ہے۔ حریم ہمنا سے کہتی ہے کہ میں اسی مقام پر بہت خوش ہوں جو فائز نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔ میرے پاس فائز کی ڈھیر ساری محبت ہے، اسی محبت کی طاقت پر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ
नासिर और फाइज की मां मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं? क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती हैं। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है। हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है? यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन में नासिर और फाइज किस तरह गली में साइकिल चलाया करते थे, लेकिन फाइज की माँ है जो पिछली बातों को याद ही नहीं करना चाहती। वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है, उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती हैं। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है। हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है? यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन में नासिर और फाइज किस तरह गली में साइकिल चलाया करते थे, लेकिन फाइज की माँ है जो पिछली बातों को याद ही नहीं करना चाहती। वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है, उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती हैं। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती हैं। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है। हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है? यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है
کہ मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन में नासिर और फाइज किस तरह गली में साइकिल चलाया करते थे, लेकिन फाइज की माँ है जो पिछली बातों को याद ही नहीं करना चाहती। वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है। उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती है। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है। हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है? यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन में नासिर और फाइज किस तरह गली में साइकिल चलाया करते थे, लेकिन फाइज की माँ है जो पिछली बातों को याद ही नहीं करना चाहती। वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है। उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती है। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है। हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है? यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन में नासिर और फाइज किस तरह गली में साइकिल चलाया करते थे, लेकिन फाइज की माँ है जो पिछली बातों को याद ही नहीं करना चाहती। वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है। उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती है। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है।
हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो, क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है। यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन में नासिर और फाइज किस तरह गली में साइकिल चलाया करते थे, लेकिन फाइज की माँ है जो पिछली बातों को याद ही नहीं करना चाहती। वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है, उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती है। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है। हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो, क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है। यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन में नासिर और फाइज किस तरह गली में साइकिल चलाया करते थे, लेकिन फाइज की माँ है जो पिछली बातों को याद ही नहीं करना चाहती। वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है, उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती है। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है। हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो, क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है। यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन में नासिर और फाइज किस तरह गली में साइकिल चलाया करते थे, लेकिन फाइज की माँ है जो पिछली बातों को याद ही नहीं करना चाहती। वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है,
उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती है। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है। हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है? यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन में नासिर और फाइज किस तरह गली में साइकिल चलाया करते थे, लेकिन फाइज की माँ है जो पिछली बातों को याद ही नहीं करना चाहती। वो नासिर की माँ से कहती है, प्लीज आप खामोश हो जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फाइज की माँ में पैसे का इस कदर गुरूर और तकब्बर है कि वो किसी को इंसान ही नहीं समझती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमना भी हरीम को खूब बातें सुनाती है। हरीम हमना से कहती है कि मैं उसी मुकाम पर बहुत खुश हूँ जो फाइज ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। मेरे पास फाइज की ढेर सारी मोहब्बत है, उसी मोहब्बत की ताकत पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। अब देखना ये है कि नासिर और फाइज की माँ मिलकर हरीम के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। क्या वो हरीम को फाइज की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हरीम की वालिदा इस दुनिया से चली जाती है। हरीम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बहुत गमगीन होती है। उसकी माँ काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट होती है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर जाती हैं। हरीम शदीद सदमे में होती है और फाइज हरीम को हौसला देता है। हरीम सदमे की हालत में फाइज से कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे, मुझसे बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे। ये सुनकर फाइज कहता है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या कभी कोई अपनी धड़कन के बगैर भी रह सकता है? यहाँ आप देखेंगे कि नासिर फाइज की माँ के पास जाता है और उसे हरीम की वीडियो दिखा देता है जो उसके पास होती है। ये वीडियो देखकर फाइज की माँ इस कदर खुश हो जाती है कि जैसे उसके हाथ कोई कीमती जवाहरात या हीरे लग गए हों। आप देखेंगे कि फाइज की माँ हरीम के घर जाती है ताज़ियत करने के लिए। वहाँ उसे उसकी पुरानी पड़ोसन मिल जाती है जो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं नासिर की माँ हूँ। बचपन